Welcome back, students. Today we will start with English Grammar Chapter 1, The Sentence, on the page number 3. So I am starting with the reading. A group of words which conveys complete sense is called a sentence. Now, first of all, you have studied earlier in standard 6th, 7th और 5th about the sentence. Now sentence क्या होता है कि sentence वो होता है जो एक group of words होता है जो क्या convey करता है, एक complete sense यानी कि एक meaningful sense बताता है, उसको हम क्या कहते हैं, sentence. Okay. Now a sentence consists of one subject and one predicate only. मतलब जो sentence है वो क्या consist करता है, एक subject होता है और एक predicate ही होता है. तो अब हम आगे पढ़ेंगे कि क्या subject है और क्या predicate है in detail. Subject and predicate. Every sentence has two parts, subject and predicate. How we will understand what is subject and what is predicate? The easiest way is the subject gives the answer of these two questions: who or what. And predicate contains verb as well as what the subject is doing. This is the easiest way to understand subject and predicate. Let us look into an example. Suppose the monkey ate a banana. What we will do at first, we will have to select the verb. What is verb in this sentence? Obviously, ate. Now we will ask these two questions, who or what. So, who ate banana? The monkey. The answer to the question who is the monkey. That's why monkey is the subject here. And ate a banana is our predicate. We should remember that predicate contains a verb. And predicate tells us about the subject. What is the subject doing or what is the subject about? That is predicate. Now let us look into one more example. The dog was barking loudly. The same principle, we will have to find out the verb. Was, barking is the verb. So who was barking? Obviously the dog. Hence the dog is our subject and was barking loudly is our predicate. So easiest way to understand, you will have to follow 3 steps. Then you can understand subject and predicate. What are those 3 steps? First, in any sentence, identify the verb first. If you will identify the verb, you will ask the question who or what before the verb. Okay, so our next step is ask a question who or what before the verb. Now the answer which you will get, that is our subject. So the answer of this who or what is our subject.
बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सिंपल सेंटेंस। अब जैसे आपने पढ़ा होगा कि जो हम सेंटेंस बनाते हैं सिंपल, उसमें भी क्या आता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। बट कभी कभी क्या होता है कि किसी सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट की जगह पे हम क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट का भी यूज़ करते हैं, ठीक है। अब जैसे नेक्स्ट, ऑल सेंटेंसेस नीड्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। इसका मतलब क्या है कि किसी भी सेंटेंस में कुछ हो या ना हो पर एक सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वर्ब होना चाहिए, ठीक है। जैसे नीचे आपको दिया हुआ है सब्जेक्ट प्लस वर्ब दिया हुआ है ना यहाँ पे। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है। अब सब्जेक्ट इज़ द पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया दैट द सेंटेंस इज़ अबाउट। इट इज़ व्हाट परफॉर्म्स द एक्शन। इसका मतलब ये है कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट वह है जिसके बारे में वो सेंटेंस है, जो सेंटेंस किसी काम को करता है, ठीक है। यानी वो किसी पर्सन के बारे में, प्लेस के बारे में, थिंक या किसी आइडिया के बारे में बताता है, ठीक है। अब हम एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले एग्जांपल आपको दिया हुआ है ही लाव्स। इसका मतलब ये है वह हंसता है। इसका मतलब अब ही क्या हो गया, यहाँ पे कौन हंस रहा है, हंसने का काम कौन करता है, ही। तो ही क्या हो गया, सब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, द सन शाइन्स। सूर्य चमकता है। तो अब यहाँ पे चमक कौन रहा है, चमकने का काम कौन करता है, सन। तो सन क्या हो गया यहाँ पे, सब्जेक्ट, ओके। नेक्स्ट अब हम देखते हैं वर्ब। जैसे अभी सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो ही है, बट ही के बाद क्या आता है, प्लेस। तो प्लेस क्या हो गया, वर्ब, यानी कि ही प्लेस, तो वह खेलता है। तो प्लेस क्या हो जाएगा, वर्ब। समझ में आया। वर्ब यानी कि क्या होता है, वर्ब जैसे एक एक्शन ऑफ अ वर्ड, यानी कि जो एक्शन करता है, या फिर स्टेट ऑफ अ बीइंग, ठीक है। जैसे वो खेलता है तो वो कर क्या रहा है, खेल रहा है। तो खेल रहा का क्या हो जाएगा, वर्ब। समझ में आया। अब हम उसको थोड़ा सा और अच्छे से देखते हैं। जैसे यहाँ पे ही प्लेस था, तो अभी हमने उसको और ज़्यादा, पहले था सब्जेक्ट प्लस वर्ब, अब हम इनको तीनों में हम एक ऑब्जेक्ट को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ही प्लेस फुटबॉल। तो वह फुटबॉल खेलता है। तो यहाँ पे ही क्या हो गया, ही क्या हो गया, सब्जेक्ट, प्लेस क्या हो गया, वर्ब, और फुटबॉल क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, ओके। तो अब इसमें तीनों चीज़ दी हुई है, सब्जेक्ट भी दिया है, वर्ब भी दिया है और ऑब्जेक्ट भी दिया है। समझ में आ गया। तो ही हो गया सब्जेक्ट, प्लेस हो गया वर्ब और फुटबॉल हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि अब ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट मतलब कि एक कर्म होता है, ठीक है, जो वर्ब के एक्शन को रिसीव करता है। क्या करता है, जो वर्ब के एक्शन को रिसीव करता है उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट, और हिंदी में हम बोलेंगे कर्म। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट मीन्स द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज द पर्सन और थिंग दैट रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि जो वर्ब को एक्शन को रिसीव करता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट, यानी कोई पर्सन या किसी थिंग को, ठीक है। अब एक नीचे एग्जांपल दिया है, ही ब्रोक द ग्लास। तो अब इसको उसने ग्लास तोड़ा, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा कि क्योंकि वर्ब, अब ग्लास जो है, ग्लास क्या हो गया है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया है। क्यों ऑब्जेक्ट हो गया है, क्योंकि वर्ब की एक्शन को रिसीव कर रहा है। ग्लास क्या कर रहा है, वर्ब के एक्शन को रिसीव कर रहा है, इसीलिए ग्लास क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, ओके। वैसे ही दूसरा एग्जाम्पल है, राम इज़ बीटिंग श्याम। अब राम श्याम को पीट रहा है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो इज़ बीटिंग है वो तो वर्ब हो गया, राम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब
ऑब्जेक्ट यानी कि यहाँ पे एक्शन कौन रिसीव कर रहा है, एक्शन क्या हो रहा है यहाँ पे कि इसने किसको मारा, कौन रिसीव कर रहा है एक्शन, श्याम, तो इसलिए श्याम क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब जैसे अगर हम एक ऑब्जेक्ट को जानना है और ज़्यादा डिटेल में, तो यहाँ पे हम दो चीज़ों का यूज़ करेंगे। पहला आएगा क्या, क्या मतलब व्हाट, और किसको मतलब whom। ठीक है। अब हम सारे एग्जांपल्स देखेंगे। जैसे ही ब्रोक द ग्लास, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि क्या तोड़ा, यानी कि उसने क्या तोड़ा, ग्लास तोड़ा, तो ग्लास क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है। फिर इसके बाद आ गया कि ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल। अब यहाँ पे हो रहा है कि क्या खेल रहे हो, तो क्या खेल रहे हो मतलब फुटबॉल खेल रहे हो। ठीक है। तो फुटबॉल क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। थर्ड एग्जाम्पल, राम इज़ बीटिंग श्याम, यानी राम श्याम को पीट रहा है। तो अब यहाँ पे वो किसको पीट रहा है, राम किसको पीट रहा है, तो राम किसको पीट रहा है, श्याम को, इसलिए श्याम क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। समझ में आया। अगर ऑब्जेक्ट आपको जानना है तो सबसे आपको दो क्वेश्चंस पूछने होते हैं, क्या या किसको। ठीक है। तो आपको उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है कि ऑब्जेक्ट में टू टाइप्स के ऑब्जेक्ट होते हैं। पहला होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो होता है जिसमें क्रिया का प्रभाव पड़ता हो। ठीक है। क्रिया मतलब वर्ब होता है। ठीक है। यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जिसमें क्रिया का प्रभाव पड़ता है, क्रिया मतलब वर्ब, तो उसको हम कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है हम उसमें क्या क्वेश्चन पूछेंगे, क्या का क्वेश्चन पूछेंगे, तो वो हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है कि जिसमें क्रिया का प्रभाव नहीं पड़ता है, तो उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम क्या क्वेश्चन पूछेंगे, whom, मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, किसको। समझ में आया। सो नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, ही गेव अ पेन। ठीक है। अब यहाँ दूसरा हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ही गेव अ पेन टू मी। ठीक है। तो हिंदी में क्या बोलेंगे, उसने मुझे एक कलम दी। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हम पहले दो क्वेश्चंस पूछेंगे। ठीक है। सबसे पहले क्या पूछेंगे कि क्या दिया, उसने मुझे क्या दिया, तो क्या दिया का क्या हो जाएगा, पेन। तो पेन क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब हम दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे कि उसने पेन किसको दिया। ठीक है। उसने, ही को उसने हो जाएगा, तो उसने पेन किसको दिया, मुझे दिया, तो यहाँ पे मी क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। समझ में आया। सो नेक्स्ट इज, अब दूसरा है, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि द टीचर आस्क्ड अ क्वेश्चन टू द स्टूडेंट्स। ठीक है। अब यहाँ पे हिंदी में क्या बोलेंगे, शिक्षक ने विद्यार्थियों से एक प्रश्न पूछा। तो अभी हम दो क्वेश्चंस पूछेंगे कि शिक्षक ने क्या पूछा, तो क्या पूछा का क्या हो जाएगा, प्रश्न पूछा। प्रश्न को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्वेश्चन, तो इसलिए क्वेश्चन क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब हम दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे कि टीचर ने किसको पूछा, टीचर ने क्वेश्चन किसको पूछा, तो किसको क्या हो जाएगा, विद्यार्थियों। विद्यार्थियों मतलब इंग्लिश में बोलेंगे स्टूडेंट्स, तो इसीलिए जो स्टूडेंट्स है वो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। समझ में आया आपको। तो हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या का क्वेश्चन पूछेंगे और इनडायरेक्ट में किसको का क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है। सो नेक्स्ट, अब नेक्स्ट आता है कि आपको एक भी ध्यान देना है कि किसी सेंटेंस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तभी होगा जब उस सेंटेंस में कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो। इसका मतलब है कि यानी किसी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हो तभी हमें सोचना होगा कि कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है। अब दूसरा है पॉइंट, यदि किसी सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट हो तो वो ही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा।
इसका मतलब ये है, दूसरा नोट ये बोल रहा है कि क्रिया का सीधा प्रभाव, जो मतलब कि कोई सेंटेंस में अगर एक ऑब्जेक्ट हो तो वो ही क्या हो जाए, अगर एक ऑब्जेक्ट है तो वो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। समझ में आया आपको? जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको, राम इज़ बीटिंग श्याम, राम श्याम को पीट रहा है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि राम किसको पीट रहा है, श्याम को। तो श्याम क्या हो जाएगा, श्याम यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होगा, श्याम क्या होगा, यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्यों? क्योंकि क्रिया का सीधा प्रभाव किस पे पड़ रहा है, श्याम पे पड़ रहा है। समझ में आया आपको? सो अब नेक्स्ट है कि आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूँ। तो यहाँ पे आपको जैसे पता है कि आई यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट, एम क्या है यहाँ पे, वर्ब, पर टीचर क्या है, तो टीचर हम यहाँ पे जो है वो ऑब्जेक्ट नहीं होगा, टीचर यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं होगा, टीचर क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट। क्या होगा, टीचर कॉम्प्लीमेंट होगा। तो कैसे कॉम्प्लीमेंट होगा, तो हम देखते हैं एक बार इसका, अभी हम इसका मीनिंग देखते हैं कि कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या होता है। अ कॉम्प्लीमेंट इज़ अ वर्ड, फ्रेज और क्लॉज दैट इज़ नेसेसरी टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ एन एक्सप्रेशन। इसका मतलब ये है कि कॉम्प्लीमेंट एक वर्ड है, फ्रेज है या क्लॉज है जो कि एक दिए हुए एक्सप्रेशन को कंप्लीट करना ज़रूरी होता है, उसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब सबसे पहले आपको ये देखना है कि कॉम्प्लीमेंट जो होता है, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट को हम क्या कहते हैं, पूरक। पूरक मतलब जो किसी सेंटेंस को पूरा करता है उसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। अब दूसरा क्या है कि कॉम्प्लीमेंट यानी कि प्रशंसा। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे दो चीज़ जो है, हम यहाँ पे दोनों का सेम साउंड हो रहा है, कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट। अब जो कॉम्प्लीमेंट होता है यहाँ पे ई जो है, अगर कॉम्प्लीमेंट में ई आए, ठीक है, तो उसको हम पूरक कहते हैं। पूरक मतलब कि जो सेंटेंस को पूरा किया जाता है। और यहीं दूसरी तरफ अगर आप देख रहे हो कि कॉम्प्ली मतलब एल आई है, तो आई दिया हुआ है ना, तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रशंसा, यानी कि जब हम किसी की प्रशंसा करते हैं। ठीक है, तो अभी हम किसके बारे में पढ़ेंगे, कॉम्प्लीमेंट के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, कॉम्प्लीमेंट के बारे में। ठीक है, अब कॉम्प्लीमेंट में आपको सबसे पहले ये देखना है कि कॉम्प्लीमेंट एड्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट और द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। यानी इसका मतलब ये है कि ये जो है किसी कॉम्प्लीमेंट जो होता है किसी भी इंफॉर्मेशन को ये ज़्यादा ऐड करता है। क्या ऐड करता है, सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो ऑफ अ सेंटेंस, तो उसमें वो कॉम्प्लीमेंट जो इन्फॉर्मेशन है, सूचना, उसको वो और ज़्यादा ऐड करता है, यानी कि पूरा करता है सेंटेंस को। ठीक है, जैसे अब जैसे मैं आपको बताती हूँ कि किसी सेंटेंस में या किसी सब्जेक्ट को किसी ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ अतिरिक्त सूचना देता है। जैसे आप देख रहे हो कि कुछ अतिरिक्त जो सब्जेक्ट होता है, जैसे मैं आपको बताती हूँ कि कुछ सब्जेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे जो है कॉम्प्लीमेंट में सब्जेक्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो यानी इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जब सब्जेक्ट के बारे में कोई सूचना देता है तो वो हम क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया है तो उसको हम ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। तो क्यों बोलेंगे, क्योंकि कुछ अतिरिक्त सूचना देना, वो हम उससे क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या देना, कुछ अतिरिक्त सूचना देना, उससे क्या कहेंगे हम, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अंडरस्टूड। सबसे अब हम देखते हैं ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। अब जो ये आपके लिए एक एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैं आपको बता रही हूँ, ये आपके ग्रामर की टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, पर मैं फिर भी आपको एक एक्स्ट्रा एक नॉलेज के लिए मैं आपको समझा रही हूँ कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। अब जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है,
कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एड्स मोर डिटेल्स अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देता है या कुछ सूचना देता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, हम उसे कहेंगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल दे रही हूँ मैं कि द बेबी इज़ क्यूट, बच्चा प्यारा है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो द बेबी है, तो बेबी क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, और क्यूट यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्यों 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 है ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट? क्योंकि सब्जेक्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है या कुछ सूचना दे रहा है, इसलिए हम इनको क्या कहेंगे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। अब बेबी कैसा है, बच्चा कैसा है वो, तो बच्चा वो क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि बच्चा क्यूट है। कैसा है, क्यूट है, इसलिए क्यूट क्या हो गया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। नेक्स्ट, मोहन इज़ वेरी वीक, मोहन बहुत कमज़ोर है, तो मोहन यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट, और वेरी वीक यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है। क्योंकि ये किसी ये सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है और सूचना दे रहा है, इसलिए हम उसको क्या कहेंगे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इसलिए वीक है, वीक जो है यहाँ पे WEAK आएगा। ठीक है। यहाँ पे ये स्पेलिंग मिस्टेक है, इसलिए WEAK आएगा। ठीक है। तो कमज़ोर है, तो इसलिए ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है, सब्जेक्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इसलिए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। नेक्स्ट है यू लुक हैप्पी, क्या है, यू लुक हैप्पी। तो अब यहाँ पे क्या है, यू क्या हो गया, सब्जेक्ट, और हैप्पी क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, यानी कि तुम खुश दिख रहे हो। कैसे दिख रहे हो, खुश दिख रहे हो। तो यहाँ पे यू जो है वो सेकंड पर्सन भी आता है, इसलिए वो सब्जेक्ट है, तो वो किसी सब्जेक्ट के इन्फॉर्मेशन दे रहा है, सूचना दे रहा है कि वो कैसा है, वो खुश है, हैप्पी है, इसलिए हैप्पी क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ओके। अब नेक्स्ट है शी रन्स फास्ट, वह तेज़ दौड़ती है, तो तो शी क्या हो गया, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, और फास्ट क्या हो गया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, यानी कि शी रन्स फास्टर। ठीक है। तो फास्ट यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, यानी कि सब्जेक्ट के बारे में सूचना दे रही है, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, इसलिए वो फास्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। समझ में आ गया? अब हमें देखना है कि क्यों जो ऐसे वर्ड्स है, डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में क्या डिफरेंस है, अभी हम वो देखेंगे। ठीक है। जैसे कि राम इज़ अ बॉय, राम एक लड़का है, तो राम क्या हो जाएगा यहाँ पे, सब्जेक्ट, और बॉय क्या हो गया यहाँ पे, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। यानी कि इसका मतलब ये है कि राम और बॉय क्या है, वो एक ही चीज़ है, राम और बॉय क्या है, एक ही चीज़ है, इसलिए वो एक कॉम्प्लीमेंट है। बट नीचे क्या दिया हुआ है कि राम इज़ बीटिंग द बॉय, राम क्या कर रहा है, राम जो है बीट कर रहा है, किसको, बॉय को, लड़के को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राम, अब यहाँ पे इस बीटिंग दिया हुआ है ना, तो इस बीटिंग यहाँ पे वर्ब भी दिया हुआ है, इसलिए जो राम और बॉय है दोनों ही अलग है, इसलिए यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे। क्या है, इसलिए ये ऑब्जेक्ट, क्योंकि राम और बॉय दोनों ही अलग है, इसलिए हम इसको ऑब्जेक्ट बोलेंगे। ठीक है। ऊपर क्या था, ऊपर जो था यहाँ पे राम इज़ अ बॉय, राम एक लड़का है, तो राम और बॉय दोनों ही एक है। ठीक है। राम एक लड़का है तो दोनों एक ही है, इसलिए वो कॉम्प्लीमेंट है। पर यहाँ पे क्या है कि राम लड़के को पीट रहा है। ठीक है। तो राम क्या हो गया, सब्जेक्ट, और बीटिंग क्या है, वर्ब भी है, और वर्ब के बाद क्या दिया है, द बॉय, यानी कि ऑब्जेक्ट, इसलिए राम और बॉय अलग अलग है। ठीक है। राम किसी और लड़के को पीट रहा है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे राम और बॉय दोनों अलग है, इसलिए ये ऑब्जेक्ट है। समझ में आया आपको? नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट आपको दिया हुआ है आई एम अ टीचर, यानी कि मैं एक शिक्षक हूँ। तो यहाँ पे आई क्या हो गया, सब्जेक्ट, आई क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट, और टीचर क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि आई इज इक्वल टू टीचर, क्योंकि टीचर जो है वो टीचर और आई मतलब मैं, दोनों एक ही चीज़ है, इसलिए यहाँ पे आई इज इक्वल टू
टीचर आएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो है वो एक ही व्यक्ति को दर्शाता है, ठीक है। आई मतलब मैं हूँ, तो मैं क्या हूँ, एक टीचर हूँ, तो इसलिए मैं और आई और टीचर दोनों ही क्या है, एक है, इसलिए ये एक ही व्यक्ति को दर्शाते हैं, इसलिए ये आई इज इक्वल टू टीचर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आई हो गया सब्जेक्ट, कार है ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि कार और आई दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। आई और कार दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं, इसलिए आई इज़ नॉट इक्वल टू कार। क्या हो जाएगा? आई इज़ नॉट इक्वल टू कार, इसलिए ये ऑब्जेक्ट है ना कि कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो समझ में आया आपको? अब नेक्स्ट दिया हुआ है यू लुक हैप्पी, तुम खुश दिख रहे हो, तो यू क्या हो गया यहाँ पे, सब्जेक्ट हो गया, हैप्पी क्या हो गया, सब्जेक्ट, बट सब्जेक्ट हैप्पी तो कॉम्प्लीमेंट है, बट वो भी एक क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्यों? क्योंकि हैप्पी जो है वो एक ऑब्जेक्ट नहीं, एक कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। क्योंकि हैप्पी एक यू की एक प्रॉपर्टी है, एक विशेषता है। यू क्या है, एक प्रॉपर्टी बताता है, एक विशेषता बताता है, ठीक है। इसलिए यू इज़ इक्वल टू हैप्पी, इसलिए ये कॉम्प्लीमेंट के साथ ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी है। ओके, समझ में आया आपको? अब हम नेक्स्ट देखते हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एड्स मोर डिटेल्स अबाउट द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, मतलब यानी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट किसी सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ सूचना देता है, उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब जो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है ये आपके टेक्स्ट बुक में लास्ट में दिया हुआ है, बॉटम में दिया हुआ है ऑन द पेज नंबर 3 में, तो ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बारे में मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। नाउ विल सी द एग्जाम्पल्स। पहला एग्जाम्पल है यू मेड मी सैड, यानी तुमने मुझे दुखी कर दिया। अब यहाँ पे यू क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। अब मी क्या है, मी जो है वो मैं हूँ, ठीक है। और सैड क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट मी के बारे में कोई जानकारी दे रहा है, इसलिए मी यानी कि मैं यानी मैं दुखी हूँ, ठीक है। तो ध्यान दें, यह सैड यू नहीं बल्कि मी है, यानी कि यहाँ पे जो सैड है वो यू नहीं बल्कि मी है, इसलिए मी इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे सैड ये एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं बल्कि एक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। समझ में आया आपको? ठीक है। सैड जो है ये मतलब कि मी के बारे में कोई जानकारी दे रहा है, इसलिए मी यानी कि मैं यानी मैं दुखी हूँ, इसलिए सैड यू नहीं बल्कि मी बता रहा है, ठीक है। और मी क्या है, मी ऑब्जेक्ट है, इसलिए सैड यह एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। अभी हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। वी मेड राम कैप्टन, यहाँ पे कैप्शन लिखा है तो यहाँ पे थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पे कैप्टन आएगा, ठीक है। तो अब हम लोगों ने राम को कैप्टन बनाया, तो मतलब वी क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या हुआ, राम, किसको बनाया, राम को बनाया, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा क्या बता रहा है कि कैप्टन जो है वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। क्यों? क्योंकि कैप्टन वी नहीं बल्कि राम हैं, ठीक है। यानी किसी वर्ड को ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होने के लिए वो वर्ड और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही चीज़ होने चाहिए, या फिर वो वर्ड उस ऑब्जेक्ट की ही प्रॉपर्टी या विशेषता होनी चाहिए। समझ में आया? इसलिए कैप्टन जो है वो राम है, ठीक है, इसलिए कैप्टन क्या हो गया, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। नाउ we'll see the next example, that is the example number 2. they call you fatty, मतलब वे लोग तुम्हें मोटा बोलते हैं। अब दे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, यू क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। और फैटी यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्यों हो गया? क्योंकि यू जो है वो फैटी है, यू क्या है, फैटी, ठीक है। यू जो है वो सेकंड पर्सन भी बताता है, तो यू यहाँ पे यू जो है वो फैटी है। फैटी होना
फैटी होना यू की ही प्रॉपर्टी है। फैटी होना यू की ही प्रॉपर्टी है, मतलब कि विशेषता बताता है, इसलिए फैटी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इसलिए यू किसके बारे में बता रहा है, फैटी के बारे में, इसलिए जो फैटी है वो यू की ही प्रॉपर्टी बताता है, मतलब एक विशेषता बताता है, इसलिए फैटी यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। ओके, समझ में आया आपको इन सब के बारे में? ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं फ्रेसेस। ठीक है, अब आपकी बुक्स में ये भी दिया हुआ है कि एडवर्ब फ्रेसेस दिया है, पर हम सबसे पहले एक फ्रेज एडजेक्टिव फ्रेसेस भी दिया है, तो फ्रेसेस के बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। फ्रेसेस क्या होता है, फ्रेसेस केवल नाउन्स के ही नहीं होते, ये एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स के भी होते हैं। ठीक है, यानी कि फ्रेसेस सिर्फ नाउन्स के नहीं होते हैं, वो एडजेक्टिव्स के भी और एडवर्ब्स के भी फ्रेसेस होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है। एन एडजेक्टिव फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव, यानी एक एडजेक्टिव फ्रेज शब्दों का एक समूह है जो एडजेक्टिव का काम करे। यानी एडजेक्टिव फ्रेज वो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो क्या काम करता है, वो एक एडजेक्टिव का ही काम करता है। जैसे आपको पता होगा कि एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव वो होता है दैट डिस्क्राइब्स और क्वालिफाइज अ नाउन, यानी कि जो नाउन की ही क्वालिटी बताता है उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव फ्रेज क्या हो गया कि जो एडजेक्टिव फ्रेज है वो एक शब्द का ही, यानी कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो एक एडजेक्टिव का ही काम बताता है, उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव फ्रेज। तो अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अ गोल्ड रिंग। अब गोल्ड क्या है, एक स्वर्ण अंगूठी, यानी कि अब गोल्ड रिंग जो है वो किसकी बनी हुई है, मेड वो गोल्ड की बनी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा क्या दिया हुआ है कि अ रिंग मेड ऑफ गोल्ड। चाहे आप गोल्ड क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, पर अगर हम उसको और ज़्यादा और ज़्यादा ब्रॉड करते हैं, यानी कि उसको और ज़्यादा मॉडिफाई करते हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अ रिंग मेड ऑफ गोल्ड। ठीक है, तो अब चाहे आप बोलो कि चाहे वो एक स्वर्ण अंगूठी है, या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं ये एक सोने से बनी हुई अंगूठी भी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अ गोल्ड रिंग एडजेक्टिव है, स्वर्ण क्या गोल्ड हो गया एडजेक्टिव, पर हमने उसको और ज़्यादा मॉडिफाई करते हुए क्या लिखा, अ रिंग मेड ऑफ गोल्ड। तो क्या हो जाएगा कि जो गोल्ड है वो चाहे हम मेड अप ऑफ गोल्ड भी कर सकते हैं, पर जब हम वर्ड्स को, यानी कि जो काम है उसका और ज़्यादा हम मॉडिफाई करते हैं, जब हम गोल्ड को और ज़्यादा मॉडिफाई करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव फ्रेज। इसलिए अ रिंग मेड ऑफ गोल्ड क्या हो गया, एडजेक्टिव फ्रेज। समझ में आया? एक सोने से बनी हुई अंगूठी, यानी सोने से बनी हुई, तो वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव फ्रेज। समझ में आया? नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2, द इंडियन फ्लैग, यानी भारतीय झंडा, यानी कि जो भारतीय है यानी इंडियन, वो क्या है, एडजेक्टिव है। अगर हम अभी भारतीय को और ज़्यादा यानी इंडियन को और ज़्यादा मॉडिफाई करते हैं तो हम क्या लिखेंगे, द फ्लैग ऑफ इंडिया। क्या लिखेंगे, द फ्लैग ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का झंडा। चाहे भारतीय का झंडा लिखो या भारत का झंडा। अभी जो भारत का झंडा यानी भारतीय को हमने और ज़्यादा मॉडिफाई करते हुए क्या लिखा, भारत का। तो जो भारत का है यानी ऑफ इंडिया है वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा। समझ में आया? यानी कि जो एडजेक्टिव है उसको हम ज़्यादा मॉडिफाई करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक है, अब हम उसके बाद का एग्जाम्पल देखते हैं। एन अबंडेंट हाउस, यानी कि एक त्यागा हुआ घर। अभी आप देख रहे हो साइड में आपको पिक्चर भी दी हुई है घर की। ठीक है, अबंडेंट क्या होता है, मतलब त्यागा हुआ घर, जिसमें उसके ऐसा घर होता है जहाँ पे कोई भी रहता नहीं है। ठीक है, उसे हम कहते हैं अबंडेंट हाउस, यानी एक त्यागा हुआ घर। अब जो अबंडेंट है वो क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, अगर हम उसको और मॉडिफाई करेंगे तो मॉडिफाई करके हमने क्या लिखा, अ हाउस विदाउट एनी रेसिडेंट, यानी कि अ हाउस विदाउट रेसिडेंट वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव फ्रेज, यानी कि एक बगैर निवासी वाला मकान। चाहे हम यहाँ पे अबंडेंट लिखें या विदाउट एनी रेसिडेंट लिखे, पर ना मीनिंग तो इनका सेम ही है, पर हमने अबंडेंट को और ज़्यादा मॉडिफाई करते हुए लिखा है विदाउट एनी रेसिडेंट। जो विदाउट एनी रेसिडेंट है वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव
फ्रेज। क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव फ्रेज। समझ में आ रहा है आपको? तो अभी हम नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट आता है एडवर्ब फ्रेजेस। तो अभी एडवर्ब फ्रेजेस क्या होता है? एक एन एडवर्ब फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज द वर्क ऑफ एन एडवर्ब। यानी कि एक एडवर्ब फ्रेज शब्दों का एक समूह है जो एडवर्ब का काम करता है। वैसे ही जैसे अभी एडवर्ब क्या होता है? वर्ब यानी एक्शन होता है, ठीक है। वैसे ही एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब वो होता है दैट एड्स मीनिंग टू द सेंटेंस, यानी कि वो ऐड करता है मीनिंग टू द सेंटेंस, उसको हम कहते हैं एडवर्ब। तो एडवर्ब फ्रेज वो होता है जब एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो किसका काम करता है? एडवर्ब का काम करता है। किसका काम करता है? एडवर्ब का। तो उसको हम क्या कहेंगे? एडवर्ब फ्रेजेस। तो अभी हम इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला एग्जांपल है ही फाउट द बैटल ब्रेवली, ठीक है, यानी उसने वीरतापूर्वक युद्ध लड़ा। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो ब्रेवली है, ठीक है, जो ब्रेवली है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ब्रेवली है एक, यहाँ पे ब्रेवली LY है लास्ट में, तो यहाँ पे ब्रेवली एक एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है, यानी कि वीरतापूर्वक युद्ध। तो वीरतापूर्वक को अगर हम उसको और ज़्यादा मॉडिफाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे ब्रेवली था, नीचे हमने विद ब्रेवली लिखा है। जैसे ही फाउट द बैटल विद ब्रेवरी, ठीक है, तो हमने क्या कि इसका नीचे क्या हो जाएगा? हिंदी में क्या बोलेंगे? उसने वीरता के साथ युद्ध लड़ा। तो अब वीरता के साथ या वीरतापूर्वक, वीरतापूर्वक तो हो गया एडवर्ब, पर वीरता के साथ यानी कि ये क्या हो गया? एक हमने ब्रेवली को और मॉडिफाई करते हुए क्या लिखा कि वीरता के साथ। तो वीरता के साथ क्या हो जाएगा? ये तीनों क्या हो जाएगा? एडवर्ब फ्रेज। क्या हो जाएगा? एडवर्ब फ्रेज हो जाएगा। समझ में आया आपको? तो ही फॉट द बैटल विद ब्रेवरी, तो विद ब्रेवरी क्या हो गया? एडवर्ब फ्रेज हो गया। समझ में आया आपको? तो नेक्स्ट देखते हैं एक बार। केयरलेसली मतलब कि लापरवाही से, तो केयरलेस और ली यानी कि लास्ट वाई आ गया। तो इसमें क्या होता है कि लास्ट वाई ये एडवर्ब हो गया। जैसे माय ब्रदर वर्क्स केयरलेसली, तो केयरलेसली क्या हो गया कि यानी कि मेरा जो भाई है, मेरा भाई लापरवाही से काम करता है, ठीक है। अब केयरलेसली LY लास्ट में तो एडवर्ब हो गया, ठीक है। अब नीचे क्या किया? इसको हमने केयरलेसली को और मॉडिफाई कर दिया, यानी कि माय ब्रदर वर्क्स विदाउट एनी केयर। मीनिंग सेम हो रहा है। केयरलेसली मतलब कि वो बिना किसी काम, मतलब कि बिल्कुल ही लापरवाही से काम कर रहा है। तो केयरलेसली हमने ऊपर तो पूरा लिखा केयरलेसली, पर उसको हमने मॉडिफाई करते हुए नीचे क्या लिखा? विदाउट एनी केयर, ठीक है। तो दोनों का मीनिंग यहाँ पे सेम ही होता है, चाहे केयरलेसली लिखो चाहे विदाउट एनी केयर लिखो। पर जब हम ये केयर यानी कि जो एडवर्ब होता है उसको हम थोड़ा और ज़्यादा मॉडिफाई करते हैं। जब हम एडवर्ब का और मतलब जो काम हम और एडवर्ब से किया हुआ काम बताते हैं तो उसको क्या कहते हैं? एडवर्ब फ्रेज। इसलिए विदाउट एनी केयर को हमने और मॉडिफाई करते हुए यहाँ पे क्या हो जाएगा? एडवर्ब फ्रेज। केयरलेसली हो चाहे विदाउट एनी केयर, दोनों का मीनिंग यहाँ पे सेम है, इसलिए विदाउट एनी केयर क्या हो जाएगा? एडवर्ब फ्रेज, यानी मेरा भाई बगैर परवाह के काम करता है। दोनों का मीनिंग सेम है, पर हमने उसको और ज़्यादा बड़ा मतलब और ज़्यादा मॉडिफाई किया हमने। समझ में आया? इसलिए एडवर्ब फ्रेज हो जाएगा नीचे वाला, ठीक है। विदाउट एनी केयर क्या हो गया? एडवर्ब फ्रेज। नेक्स्ट एग्जाम्पल है अपवर्ड्स। अपवर्ड्स क्या हो गया? ऊपर की तरफ, यानी कि वो एडवर्ब हो गया। अभी हम उसको और ज़्यादा मॉडिफाई करते हैं, तो यहाँ पे नीचे दिया है टुवर्ड्स अ हायर एल्टीट्यूड। तो टुवर्ड्स अ हायर एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है कि एक ऊंचे स्तर की ओर। तो ये क्या हो गया? एडवर्ब का हमने मीनिंग जो है उसको और मॉडिफाई करते और ज़्यादा हमने उसको ब्रॉड कर दिया, तो उसमें क्या हो जाएगा? टुवर्ड्स अ हायर एल्टीट्यूड। मतलब दोनों का मीनिंग यहाँ पे सेम है। जब हम मीनिंग दोनों का सेम हो, पर जब हम एडवर्ब को थोड़ा और ज़्यादा मॉडिफाई करते हैं ना, जब हम एडवर्ब को और ज़्यादा मॉडिफाई करते हैं तो उसको क्या बोलेंगे हम? एडवर्ब फ्रेज। इसलिए टुवर्ड्स अ हायर एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा? एडवर्ब फ्रेज। समझ में आया आपको? नाउ लास्ट एग्जाम्पल है ही वेंट एब्रोड, यानी कि अब एब्रोड क्या हो गया? एडवर्ब, ठीक है।
वह विदेश चला गया। कहाँ चला गया? विदेश चला गया। अब एब्रोड का हम दूसरा, अब किसी किसी को क्या होता है कि क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि उसको समझ में नहीं आता है कि ये एब्रोड क्या होता है, यानी कि उसको क्वेश्चन मार्क लग गया, उसको समझ में नहीं आया कि एब्रोड क्या होता है। तो हम एब्रोड को मीनिंग को और ज़्यादा मॉडिफाई करते हुए क्या लिख सकते हैं? ही वेंट टू अ फॉरेन कंट्री, मतलब वह विदेश को या में चला गया, यानी वो विदेश में चला गया या विदेश को चला गया। यानी जो एब्रॉड है उसका मीनिंग को हमने और ज़्यादा मॉडिफाई कर दिया, मतलब कि उसका दूसरा मीनिंग यहाँ पे हमने क्या दे दिया एब्रॉड का। कभी कभी क्या होता है किसी को एब्रॉड का मीनिंग पता नहीं चलता, इसलिए हम इसकी जगह क्या यूज़ करते हैं? टू अ फॉरेन कंट्री। ठीक है, तो अब हमने टू फॉरेन कंट्री जो हमने यूज़ किया है ना, टू अ फॉरेन कंट्री, तो टू अ फॉरेन कंट्री का क्या हो जाएगा? मीनिंग तो उसका सेम ही है, एब्रॉड। चाहे फॉरेन कंट्री लिखो चाहे एब्रॉड लिखो, दोनों का मीनिंग यहाँ पे क्या है? सेम। इसलिए टू अ फॉरेन कंट्री क्या हो जाएगा? एडवर्ब फ्रेज। समझ में आया आपको? ये सारे समझ में आया आपको कि क्या होता है? एडवर्ब फ्रेजेस क्या होते हैं, एडजेक्टिव फ्रेजेस क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ठीक है, सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है। समझ में आया आपको? तो अभी हम नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट इन द पेज नंबर 4 में और 5 में प्राइमरी ऑक्सिलरीज और मॉडल ऑक्सिलरीज। So next topic is your primary auxiliaries on the page number 4। तो प्राइमरी ऑक्सिलरीज क्या क्या होता है? तो यहाँ पे आपकी बुक में दिया हुआ है डू, डज, डिड, हैज़, हैव, हैड, इज, एम, आर, वॉज और वर। तो ये सारे क्या होते हैं? प्राइमरी ऑक्सिलरीज होते हैं। तो नीचे आपको वही एग्जांपल दिया है। तो डू यू लाइक कोल्ड ड्रिंक, तो यहाँ पे डू क्या हो गया? डू जो है वो क्या हो गया आपका? यहाँ पे डू जो है वो आपका एक क्या हो गया? प्राइमरी ऑक्सिलरीज। तो वैसे ही यहाँ पे नीचे दिया है सेकंड एग्जांपल, हैज़ कीर्ति कंप्लीटेड हर होम टास्क, तो यहाँ पे हैज़ क्या हो गया? प्राइमरी ऑक्सिलरीज। वैसे नेक्स्ट है इज़ ही योर्स कजिन, तो यहाँ पे ई स्टार्टिंग में है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका? प्राइमरी ऑक्सिलरीज। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मॉडल ऑक्सिलरीज, यानी जो मॉडल्स, ये सब तुम्हारे पेज नंबर 5 में दिया हुआ है और ऑक्सिलरीज के बारे में मैं तुम्हें 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, अब मॉडल ऑक्सिलरीज भी तुम पढ़ चुकी हो, तो यहाँ पे आपको सिर्फ कौन कौन से मॉडल ऑक्सिलरीज है वो दिया हुआ है। शैल, विल, कैन, कुड, मे, माई, शुड, वुड, मस्ट, ऑट टू, नीड और डेयर। तो नीचे यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, विल शी कम टू यू होम, यानी कि यहाँ पे क्या विल, तो विल क्या हो गया? स्टार्टिंग में आपको विल दिया हुआ है, तो विल वो हो जाएगा मॉडल ऑक्सिलरीज। यानी किसी सेंटेंस में अगर आपको मॉडल ऑक्सिलरीज आते हैं जैसे शैल, विल, कैन, कुड, तो वो क्या हो जाएगा आपका? मॉडल ऑक्सिलरीज। नेक्स्ट एग्जांपल है शैल वी वेट फॉर द डिसीजन, तो शैल क्या हो गया? सेंटेंस के स्टार्टिंग में शैल दिया है, तो शैल हो गया वो मॉडल ऑक्सिलरी। ठीक है, लास्ट एग्जांपल है कैन यू स्विम अक्रॉस द रिवर, तो कैन क्या हो गया यहाँ पे? मॉडल ऑक्सिलरीज। ठीक है, कैन हम वो बताते हैं जिसमें टैलेंट शो होता है, तो कैन का मतलब क्या होता है? इन प्रेजेंट टेंस में कैन होता है, पास्ट टेंस में कुड होता है। तो कैन का मीनिंग क्या होता है? जो क्या बताता है? एक एबिलिटी बताता है, मतलब एक टैलेंट बताता है, तो उसको हम कैन का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो क्या तुम पानी मतलब पानी में तुम यानी स्विम कर सकते हो, नदी में तुम तैर सकते हो। ठीक है, तो कैन हो जाएगा यहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरीज। अंडरस्टूड? सो दिस इज़ योर फर्स्ट चैप्टर एंड दिस फर्स्ट चैप्टर एक्सप्लेनेशन इज़ ओवर। तो मैं आपको एक्सरसाइज जो है वो मैं आपको भेज दूँगी, ठीक है, आंसर्स के साथ। पर आप भी एक बार ट्राई करो लिखने के लिए, करने के लिए खुद से। ठीक है, ओके, बाय, टेक केयर।